In class 8, today I'm going to teach you what is pressure. We have studied yesterday in doubt clearing classes about the movement of force and torque, force and pressure. Now we are going to study what is pressure. Force, I have told you, any push or pull is called force, which is the basic definition of force. Now we are going to study pressure. Pressure का before starting I'll give you a quick review कि pressure होता क्या है. Force में तो हम कहीं किसी भी चीज़ पे अगर force and pressure they both are linked together. Pressure में क्या होता है कि हमें force लगा रहे हैं और कितने एरिया में लगा रहे हैं. It describes the area where the force is applied. यूनिट एरिया कि किस एरिया में कितने एरिया में हम उस फोर्स को लगा रहे हैं. प्रेशर एंड फोर्स बोथ आर सेम बट द डिफरेंस इन बिटवीन देम इज इन फोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एरिया बट इन pressure we will talk about the force applied in a area, how much area it is required to apply the force. So we will start with the bookish definition and all. Press hard against the surface of inflated balloon with your thumb. एक आधा भरा हुआ बलून को या यू कैन से कि जिसमें से हवा निकली हो उसको आप प्रेस कीजिएगा थंब से. ओनली अ स्लाइट डिप्रेशन विल फॉर्म ऑन द सरफेस. थोड़ा ही से उसमें दिखेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा. बाकी इफ़ यू पुश लाइटली अगेंस्ट द सरफेस विद पिन द बलून विल बर्स्ट. थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी हवा वाला बलून आप प्रेस कीजिएगा टेबल पे, यू फाइंड कि उसमें से थोड़ा सी हवा निकल रही है एंड इट इज़ लिटिल बिट कमिंग ऑन द सरफेस. फिर इसको आप बर्स्ट कर सकते हैं. दिस बिकॉज द फर्स्ट केस द फोर्स यू अप्लाइड एक्टेड ऑन मच लार्जर एरिया देन द सेकेंड केस. क्योंकि जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो उस एरिया में जाके रुका है जहाँ पे ज़्यादा एरिया थी, उस सरफेस में जाके रुका है जहाँ पे ज़्यादा एरिया थी. ठीक है. इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स. आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो के एरिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि फोर्स के ऊपर एरिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कहाँ हमने प्रेशर अप्लाई किया है. To put this more precisely, we define the quantity pressure. Pressure is the force applied per unit area. Pressure का कुछ और डेफिनेशन नहीं है. प्रेशर का बस यही डेफिनेशन है कि हमने फोर्स कितने एरिया में लगाया है. फोर्स जो हमारा लग रहा है वो कितने एरिया में लग रहा है. इट इज़ बेसिकली dependent on the area. The force which we are applying is dependent on the area. Rather, it is force normally, the thrust per unit area of surface. However, this chapter we will not distinguish between force and thrust. Now we are not going to distinguish between the force and thrust. Thrust is is another thing. Pressure is equals to force upon area. P is equals to F upon A. This is the symbol. We are using pressure P for pressure, force F, and for area we are using A. What is the unit of pressure? Unit of pressure while we measure area in the meters and for the force we use Newton. तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा because for F we are using Newton and for area we are using meter. So it is going to be Newton per meter square. So the symbol for Newton per meter square is for pressure is Newton per meter square, which is also known as Pascal, and for that Pascal the symbol is PA. Then we have certain numericals. And after that, what is increasing pressure? We need to apply large pressure to cut or pierce an object. हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है जब हम किसी भी चीज़ को बीच से काटते हैं या उसको फाड़ते हैं. This is done by reducing the area over which the force acts. Here are some examples. What we used to do when we are going to turn any page. So are you going to tear the page from this side, or you will keep the scale and apply the pressure from this side? You will get a great margin if you will apply the pressure over this area rather than this area. So for pressure it is very necessary. Where are you for pressure it is very necessary to know the area where you are going to use the force. ठीक है. The tip of nail का जो टिप है, पिन और निडल हैज़ वेरी स्मॉल एरिया. इनके बीच में जो एरिया होता है बहुत स्मॉल होता है. जब हम पुश करते हैं पिन को किसी भी सरफेस पे तो क्या होता है, जो प्रेशर एक्ट करता है टिप पे वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये जो सॉफ्ट बोर्ड पिन्स दिख रही हैं आपको वो आसानी से अंदर सरफेस में चली जाती हैं. फिर एक वेजिटेबल नाइफ हैज़ अ शार्प एज. सो व्हेन वी अप्लाई स्मॉल फोर्स ऑन इट्स हैंडल इट अप्लाइज अ लार्ज प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग कट.
जब उसके हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो लार्ज प्रेशर से कटेगी वेजिटेबल्स नाइफ से। द एज ऑफ द बटर नाइफ ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट शार्प, दिस इज वाई वी कैन नॉट चॉप वेजिटेबल्स। और जो एजेस होते हैं बटर नाइफ के वो ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं, तो उससे हम वेजिटेबल्स नहीं काट सकते। वेपन्स जैसे स्पेयर, स्वॉर्ड्स, डैगर्स, इनकी शार्प पॉइंट्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, बोथ सो दैट दे कैन पियर्स और कट, इस वजह से ताकि वो काट भी सके और बीच से फाड़ भी सके। फिर रिड्यूसिंग प्रेशर क्या है, टू डिक्रीज द प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स वी इंक्रीज द एरिया। हमें अगर प्रेशर रिड्यूस करना है, कम करना है, तो हम उसका एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कि ऊपर नीचे हैं, अगर फोर्स बढ़ेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा, और एरिया बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया डिक्रीज करेगा तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक को कम करता है दूसरा ज़्यादा होता है। कहीं भी आपको ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखे ऊपर नीचे वाला, तो वो ऑपोजिट रिएक्ट करेगा। So to move through snow, long metal skies or wide snow shoes are used to increase the area of contact। ठीक है, तो लॉन्ग मेटल के जो होते हैं, आप जब स्नो राइडिंग या स्नो स्केटिंग करने जाइएगा, यू विल वेयर दैट दो शूज़। उनको क्यों यूज़ करते हैं, इंक्रीज करने के लिए, बड़े होते हैं ताकि उनसे इंक्रीज हो जाए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द डिक्रीज द प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ पर्सन प्रिवेंट्स द फीट फ्रॉम सिंकिंग इनटू स्नो। एरिया बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, जिससे जो इंसान जो होता है वो फिसलता नहीं है बर्फ़ में। बर्ड्स दैट वॉक ऑन लीव्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हैव वेरी वाइड फीट। जो बर्ड्स जो होती हैं वो वॉक करती हैं लीव्स पे, जो कि पानी के सरफेसेस पे फ्लोट करती हैं, उनकी बहुत चौड़ी फीट्स होती हैं। कैमल्स टू हैव अ वाइड फीट, इन बोथ द केसेस द वेट गेट्स डिस्टर्ब्ड ओवर वाइड एरिया। बोथ द केसेस में क्या होता है, वेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं वाइड एरियाज़ में, उनका जो फीट होता है उसी हिसाब से वेट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रिवेंटिंग लेग्स फ्रॉम सिंकिंग इनटू वाटर और सैंड, जिससे जो होता है पानी से या सैंड से उनके पैर जो होते हैं वो फिसलते नहीं है। इन स्ट्रैप्स ऑफ द शोल्डर बैग्स इन विच वी कैरी लगेज आर पर्पसली मेड ब्रॉड। ये जैसे ये चौड़े होते हैं बैग के स्ट्रिप्स, इससे क्या होता है, दिस डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द शोल्डर बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इससे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जो हमारी बॉडी के जिस हिस्से पे ये स्ट्रिप लग रही होती है, चौड़ी बनाई जाती है। क्यों चौड़ी बनाई जाती है, इससे ना प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एरिया इंक्रीज कर दिया जाता है। अब आप कोई पतली पट्टी वाला बैग टांग लीजिए, उसमें सामान भर दिए, तो आपके शोल्डर दर्द करने लगेंगे। इस वजह से इनको चौड़ी पट्टी का बनाते हैं, क्योंकि एरिया इंक्रीज कर जाता है तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है।